اور شادی کے بعد بعض اوقات ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں جن کی توقع نہیں ہوتی، تو شاید لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ شادی ایک جوا ہے، بلکہ اچھا انتخاب یعنی چھوٹی دولت اور ملازمت کے ساتھ ساتھ بچے کے یا بچی کے کردار، اخلاق، رویے کو بھی اہم رکھیں۔ ایسا شخص جو اپنے دینی فرائض کا خیال رکھتا ہو اور اسے حلال اور حرام کی تمیز ہو۔ اچھا شریک حیات وہ نہیں ہوتا جو کبھی غلطی نہ کرے، بلکہ وہ ہے جو غلطی ماننے۔ اکثر جب غیروں میں رشتہ کیا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ شادی سے پہلے صرف چند ملاقاتوں میں کسی بھی شخص یا کسی خاندان کے بارے میں مکمل طور پہ جاننا ممکن نہیں ہے۔ آپ نے ان سے صحیح سوالات کیے۔ آمدنی سے زیادہ اہم یہ ہے کہ مالی معاملات میں ایمانداری اور ذمہ داری ہے یا نہیں ہے۔ کیا ہر ملاقات میں ان کی باتیں ایک جیسی ہی رہتی ہیں یا پھر بار بار بدلتی ہیں؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، لوگ اپنی باتوں سے کم اور اپنے رویے سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں۔ دوسرا جو خاندان ہے، رشتے کے دوران وہ حد سے زیادہ اچھا تاثر دینے کی کوشش تو نہیں کر رہا؟ بچوں سے بھی پوچھیں، بعض اوقات وہ باتیں والدین کو سمجھ نہیں آتی، بچوں کو سمجھ آ جاتی ہیں، تو یہ سب مل کر ایک بہتر اور زیادہ سوچا سمجھا فیصلہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کھلی گفتگو سے میری مراد یہ ہے کہ اکثر والدین کھل کے بات نہیں کرتے۔ جیسے اگر لڑکا ملک سے باہر ہے تو شادی کرتے وقت یہ نہیں پوچھیں گے کہ بچی کو ساتھ لے جائے گا یا نہیں، یا اگر لڑکی شادی کے بعد اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے یا ملازمت جاری رکھنا چاہتی ہے تو اس بارے میں بھی شادی سے پہلے واضح بات کر لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ گفتگو رشتہ ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ بعد کے اختلافات سے بچنے کے لیے لازمی ہے۔ اگر واضح بات چیت اعتماد پیدا کرتی ہے، اور غیر واضح توقعات اکثر شادی کے بعد جھگڑوں کا ہی سبب بنتی ہیں۔ تو جب بھی کسی غیر خاندان میں شادی کا ارادہ رکھتے ہوں تو والدین کو اپنے بچوں کے متعلق یہ سوالات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کے ہاں باتوں باتوں میں یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک کامیاب شادی صرف محبت سے نہیں بلکہ اعتماد، دیانت، واضح گفتگو، باہمی احترام اور حقیقت پسندانہ توقعات سے مضبوط بنتی ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو مشکلات کا کتنا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں کتنی مشکل آ رہی ہے۔ آپ یہ سوچا کریں کہ ابھی بھی آپ ان لوگوں سے آگے ہیں جنہوں نے کوشش تک نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دودھ کے ساتھ مربے سے جامن بھی آ گئے ہیں، بالکل فریش ہوتے ہیں، تازہ توڑ کے دیتے ہیں بازاروں کے بچے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ تو دودھ میں گرم کر لیتی ہوں فوراً ہی۔ گرمی کے دن ہے، اگر زیادہ دیر ڈبے میں پڑا رہے تو پھر خراب ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے میں جیسے ہی دودھ آتا ہے اس کو فوراً ہی چھان کے گرم کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد میں بناتی ہوں ناشتہ اور کھانے کا جو ہفتہ وار شیڈیول ہے وہ میں نے ذہن میں سوچ کے رکھا ہوا ہوتا ہے، ایک ہی دن پہلے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مشکل سبزی بنانی ہو، جیسے کل میں نے کریلے چھیل کے نمک لگا کے رکھ دیے تھے، گوشت کا پیکٹ بھی میں نے نکال لیا ہے چکن کا، تو ناشتے کے بعد میں برتن دھونے کے ساتھ ساتھ ہی سبزی بنانے کی تیاری کر لیتی ہوں۔ جاوید سبزی میں آج لائے ہیں بھنڈی اور کدو، تو انہیں نہیں پتا تھا کہ میں کریلے بنانے والی ہوں، ویسے بھی کریلے پسند نہیں ہیں گھر کے زیادہ افراد کو، لیکن گرمیوں کی سوغات ہے اس لیے بنتی تو ہے۔ ویسے بھی میرا یہ اصول ہے کہ ہر چیز پکے گی، چاہے آپ تھوڑی کھائیں یا زیادہ، جس کو پسند ہے وہ زیادہ کھا لے، جس کو نہیں پسند وہ کم کھا لے۔ باقی کی سبزی میں رکھ دوں گی فریج میں تاکہ فریش رہے، اور فروٹ بھی اسی طرح ساتھ ہی میں واش کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ بچوں کو جس طرح طلب ہو کھاتے رہتے ہیں، اٹھاتے رہتے ہیں۔ آج صبح جب ہم سائی برف لینے آئی تو اس نے ایک بات کہی کہ شادی تو ایک جوا ہوتی ہے۔ یہ فکرہ اکثر میں نے لوگوں سے سنا ہوا ہے، لیکن یہ فکرہ ایک محاورہ بن گیا ہے، حقیقت کا یا اسلامی تعلیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ شادی ایک جوا ہے؟ شادی سے پہلے انسان دوسرے انسان کی اصل عادات، مزاج اور کردار کو چونکہ مکمل طور پہ نہیں جانتا ہوتا، اور شادی کے بعد بعض اوقات ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں جن کی توقع نہیں ہوتی، تو شاید لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ شادی ایک جوا ہے، کیونکہ شریک حیات اگر اچھا مل جائے تو زندگی خوشحال ہو جاتی ہے اور سدھر جاتی ہے، سنور جاتی ہے، لیکن اگر مزاج یا اقدار میں شدید اختلافات ہو جائیں تو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ البتہ اسلامی نقطہ نظر سے شادی کو جوا کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جوا تو قسمت آزمانے اور ناجائز خطرہ مول لینے کا نام ہے، جبکہ شادی جو ہے وہ ایک سنجیدہ، ذمہ دارانہ اور باقاعدہ معاہدہ ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب شادی کے لیے شریک حیات کا انتخاب کرتے ہیں اپنے بچہ بچی کے لیے، بیٹا بیٹی کے لیے، تو عموماً صرف خوبصورتی، دولت یا پھر اگلے کی ملازمت دیکھ لیتے ہیں، آمدنی دیکھ لیتے ہیں، جبکہ ان خصوصیات کے علاوہ اگر شادی سے پہلے دوسرے کی دین داری، اخلاق اور کردار اور باہمی موافقت، اس کو اگر اہمیت دی جائے تو شادی زیادہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ شادی ایک ذمہ داری ہے جس کی کامیابی کا انحصار صرف قسمت پر نہیں ڈال سکتے، بلکہ اچھا انتخاب، یعنی جب آپ نے اسپاؤس کا انتخاب کرنا ہے اپنے بیٹا یا بیٹی کے لیے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ خوبصورتی، دولت اور ملازمت کے ساتھ ساتھ بچے کے یا بچی کے کردار، اخلاق، رویے کو بھی اہم رکھیں، کیونکہ کسی بھی انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اس کا کردار، اور خاص طور پہ شادی کے لیے، سب سے اہم ہے۔
खूबसूरती, दौलत और मुलाज़मत ये वक्त के साथ बदल सकती है, लेकिन अच्छा किरदार इज़्दिवाजी ज़िंदगी को मजबूत बनाता है। अब किरदार में कौन-कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? देखें, कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पे खूबियों का मुरक्का नहीं होता, ना ही हर इंसान में बुराइयाँ होती हैं, लेकिन ये चंद खुसूसियात हैं जो लाज़मी देखनी चाहिए। इसमें सबसे पहले दीनदारी और अल्लाह का खौफ होना चाहिए। ऐसा शख्स जो अपने दीनी फ़राइज़ का ख़्याल रखता हो और उसे हलाल और हराम की तमीज़ हो। इसके अलावा इसका इखलाक अच्छा हो, नरम मिजाज हो, सच्चा हो, अमानतदार हो, बाअदब हो, गुस्से पे काबू पाने वाला हो। मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान में ये सारी खूबियाँ अपने अरूज पे होंगी, लेकिन एक रवैया ओवरऑल जो इंसान का एटीट्यूड है वो अच्छे अखलाक की जानिब हो, उसकी गुफ्तगू का अंदाज़ अच्छा हो और किसी भी किस्म के इख्तलाफात अगर हो जाएँ तो उनको इज़्ज़त और सुकून के साथ हल करने की सलाहियत रखता हो। उसमें दयानतदारी यानी अपनी तालीम, मुलाज़मत, माली हालत या किसी भी माज़ी की बारे में धोखा ना देता हो। इसके अलावा ख़वातीन का एहतराम या बुज़ुर्गों का एहतराम ये भी उसकी आदत में शामिल होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि अच्छा शरीके हयात वो नहीं होता जो कभी गलती ना करे, बल्कि वो है जो गलती मानने और माज़रत करने, उसमें सीखने और तल्लुक को बेहतर बनाने की कोशिश करने की आदत हो। यही ख़ुसूसियात एक मज़बूत और पायदार ज़िंदगी ज़िंदगी की बुनियाद बनती हैं। इस्लाम में भी दीन और इखलाक को शरीके हयात के इंतखाब में बहुत अहम करार दिया है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान औरत किसी भी औरत से शादी करता है तो 3 वजह होती हैं उसकी, या तो उसकी खूबसूरती, उसका माल या फिर उसकी दीन और इखलाक। तो दीन और इखलाक सबसे अहम है, अगर किसी भी औरत की सिलेक्शन करनी है तो उसमें दीन और इखलाक को सबसे पहले रखा जाए। अब ये भी ना हो कि खुद अपना बच्चा तो दीनदार नहीं है, लेकिन हम अपने लिए बहू ढूँढने निकले हैं या अपने लिए दामाद ढूँढने निकले हैं, तो हम उसमें दीन और इखलाक को तलाश करते फिरें। अमली ज़िंदगी में दोनों का मज़ाज आपस में मिलना, दोनों की आदत और दोनों की सलाहियतें और ज़िंदगी का जो मकासद हैं, उनमें मुनासिब हम-आहंगी होनी ज़रूरी है। इसलिए जब भी वालिदैन अपने बच्चे के लिए रिश्ता ढूँढते हैं, और वो भी अगर गैरों में रिश्ता ढूँढते हैं, तो ये वो सारी खुसूसियात हैं जिनको उन्होंने बगौर मुशाहदा लाज़मी करना है। अपने बच्चे या बच्ची का रिश्ता करना है और ये खुसूसियात भी ढूँढनी है, ये हमें पता चल गया। लेकिन अब बहुत अहम सवाल है कि अक्सर जब गैरों में रिश्ता किया जाता है, तो दोनों तरफ ख़ानदान एक-दूसरे से जो मेल-मिलाप रखते हैं, होता ये है कि बहुत कम आना-जाना होता है, चंद मुलाकातें होती हैं और उसके बाद मंगनी या फिर शादी कर दी जाती है। तो इतनी कम मुलाकातों में कैसे किसी शख्स या ख़ानदान को मुकम्मल तौर पे जाना जा सके, ये किस तरह मुमकिन है? हकीकत ये है कि शादी से पहले सिर्फ चंद मुलाकातों में किसी भी शख्स या किसी ख़ानदान के बारे में मुकम्मल तौर पे जानना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर 2-4 मुलाकातों में भी आपने उनसे सही सवालात किए या आपने उनको सही से ऑब्ज़र्व किया और तहकीक की, लोगों से पूछ-गीछ की, तो हम किसी भी रिश्ते के बारे में और उनके आने वाली ज़िंदगी के बारे में बेहतर अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि उनके घर का माहौल कैसा है। घर में ये लोग एक-दूसरे से किस लहजे में बात करते हैं? क्या घर में एहतराम, शाइस्तगी और अच्छे अखलाक की फ़ज़ा है? घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है, तो उसके साथ घर वालों का रवैया कैसा है? या औरतों के साथ माँ, बहन या दीगर अफ़राद हैं, उनके साथ कैसा सलूक है? दूसरा पॉइंट ये है कि बात करने का अंदाज़ जाँचा जा सकता है चंद ही मुलाकातों में, कि बात करने का अंदाज़ क्या है? एहतराम से बात करते हैं या अपनी बात में दूसरों को नीचा दिखाने वाला स्टाइल होता है? और जो बात कर रहे हैं उसमें अगर वो किसी दूसरे का ज़िक्र कर रहे हैं, अपने साबका रिश्तों का या रिश्तेदारों का या किसी भी लोग का, तो उनकी क्या वो बुराइयां करते हैं? यानी दूसरे लोगों का जिक्र किन अल्फाज में किया जाता है, ये भी एक तो मुलाकातों में पता चल जाता है। अगर किसी बात में आपका और उनका इख्तलाफ होता है या उनका आपस में ही घर में किसी के साथ इख्तलाफ है या कोई गुस्सा आया है किसी को, तो गुस्से के वक्त बर्ताव कैसा है या इख्तलाफ को हल कैसे करते हैं? किसी भी गैर शख्स के किरदार को चंद ही मुलाकातों में पहचानने का एक अच्छा तरीका ये है, ये देखें कि वो उन लोगों के साथ कैसे रवैया रखते हैं जिससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी जैसे घर के मुलाजिम हैं या कोई दुकानदार हैं, वेटर है, ड्राइवर है या कोई भी कमज़ोर शख्स, तो उनके साथ भी अगर एहतराम और इंसाफ से पेश आते हैं तो उसके अच्छे किरदार का इम्कान ज़्यादा होता है। लेकिन अगर इसके ऑपोज़िट है, कोई शख्स हर बात पे दूसरों को कसूरवार ठहराता है, अपनी गुफ्तगू के दरमियान गुस्सा ज़्यादा करता है या झूठ बोलता है, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वादा करके वादा तोड़ता है, तो ये ऐसी निशानियां हैं जिन्हें संजीदगी से लेना चाहिए। तीसरा बहुत अहम नुक्ता जो किसी भी गैर खानदान में बच्चा या बच्ची की शादी करते वक्त देखना चाहिए, वो उनके माली मामलात हैं। माली मामलात में वो सच बोल रहे हैं और उनकी आमदनी क्या है। आमदनी से ज़्यादा अहम ये है कि माली मामलात में ईमानदारी और ज़िम्मेदारी है या नहीं है। क्या ये लोग अपनी आमदनी के मुताबिक ज़िम्मेदारी से खर्च करने वाले और फ़ज़ूल खर्ची या कंजूसी से बचने वाले हैं? ये बात भी देखनी ज़रूरी है।
क्या उनकी गुफ्तगू में बार-बार जहेज़ का तज़किरा आता है या तनख्वाह, जायदाद या माली फ़ायदे के गिर्द उनकी गुफ्तगू घूमती है? तो भी कॉन्शियस हो जाना चाहिए। चंद मुलाकातों में किसी को पहचानने के लिए सबसे अहम नुक्ता आपको एक पॉइंट बता रही हूँ। आप ये गौर करें कि क्या हर मुलाकात में उनकी बातें एक जैसी ही रहती हैं या फिर बार-बार बदलती हैं। इसके साथ-साथ एक बात भी ज़रूर कहूँगी कि सिर्फ़ मुलाकातों पे इन्हिसार ना करें, बल्कि तहकीक ज़रूर करें। ऐसे लोगों से मालूमात लें जो उस ख़ानदान को काफ़ी अरसे से जानते हों, जैसे उनके पड़ोसी हो गए या फिर बच्चा या बच्ची जहाँ काम कर रहे हैं तो उनके ऑफ़िस के साथी हो गए या फिर उनके कोई काबिल एतमाद रिश्तेदार। एक बात हमेशा याद रखें, लोग अपनी बातों से कम और अपने रवैये से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। इसलिए सिर्फ़ मीठी बातों से मुतासिर होने की बजाय उनके इख़लाक़, सब्र, वादों की पाबंदी और दूसरों के साथ बर्ताव को गौर से देखें। यही चीज़ें शादी के बाद की ज़िंदगी का ज़्यादा दुरुस्त इशारा देती हैं। इस मामले में हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि दूसरा जो ख़ानदान है रिश्ते के दौरान वो हद से ज़्यादा अच्छा तासुर देने की कोशिश तो नहीं कर रहा। असल किरदार अक्सर इस बात से ज़ाहिर होता है कि वो कमज़ोर लोग, मुलाज़मीन, रिश्तेदार या इख्तिलाफ़ की सूरत में कैसा रवैया इख्तियार करते हैं। आखिर में तो ये कहूँगी कि मुकम्मल यकीन किसी के बारे में भी मुमकिन नहीं होता, लेकिन अगर आपने अच्छी तरह से तहकीक कर ली और उनके साथ खुली गुफ्तगू कर ली, इस्तिखारा भी करें और दुआ और फिर बच्चों की रज़ामंदी भी। बच्चों से भी पूछें, बाज़ औक़ात वो बातें वालिदैन को समझ नहीं आती, बच्चों को समझ आ जाती हैं। तो ये सब मिलकर एक बेहतर और ज़्यादा सोचा-समझा फ़ैसला करने में मदद देते हैं। खुली गुफ्तगू से मेरी मुराद ये है कि अक्सर वालिदैन खुल के बात नहीं करते। जैसे अगर लड़का मुल्क से बाहिर है, तो शादी करते वक़्त ये नहीं पूछेंगे कि बच्ची को साथ ले जाएगा या नहीं। या अगर लड़की शादी के बाद अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती है या मुलाज़मत जारी रखना चाहती है, तो इस बारे में भी शादी से पहले वाज़िया बात कर लेना बहुत ज़रूरी होता है और ये बात सिर्फ़ लड़की के लिए नहीं बल्कि लड़के के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी तवक्कात पहले से ही बयान कर दी जाए। ये ऐसे मौज़ूआत हैं कि अगर इन पे खुलकर पहले ही बात कर ली जाए कि शादी के बाद लड़की तालीम जारी रख सकेगी या नहीं, वो मुलाज़मत करेगी या नहीं, मुलाज़मत करेगी तो घर की ज़िम्मेदारियाँ कैसे तक़सीम होंगी और बीवी की आमदनी के बारे में शौहर और उसके ख़ानदान के क्या तवक्कात हैं, ये गुफ्तगू रिश्ता ख़त्म करने के लिए नहीं है, लेकिन ये बाद के इख्तलाफ़ात से बचने के लिए लाज़मी है। अगर लड़की समझती है कि वो ज़रूर नौकरी करेगी, लेकिन लड़के का ख़ानदान चाहता हो कि शादी के बाद वो मुलाज़मत छोड़ दे, तो इस तरह के जो इख्तलाफ़ात हैं, अगर शादी से पहले ही वाज़िया कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। इस तरह अगर लड़का किसी ख़ास तर्ज़ ज़िंदगी की तवक्को रखता है तो उसे भी पहले ही बता देना चाहिए। वाज़िया बातचीत एतमाद पैदा करती है और गैर वाज़िया तवक्कुआत अक्सर शादी के बाद झगड़ों का ही सबब बनती हैं। तो जब भी किसी गैर ख़ानदान में शादी का इरादा रखते हों, तो वालिदैन को अपने बच्चों के मुतल्लिक ये सवालात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है कि आपके यहाँ जहेज़ के बारे में क्या सोच है, शादी के बाद रिहाइश का क्या मंसूबा है, ख़ानदान की तवक्कुआत क्या हैं, माली ज़िम्मेदारियों के बारे में अमूमी सोच जो है उसके बारे में सवाल किए जा सकते हैं। अगर दोनों लड़का और लड़की मुलाज़मत करेंगे तो घर के काम कैसे तक़सीम होंगे, बीवी की कमाई के बारे में क्या राय है, घरेलू अख़राजात किस तरह चलाए जाएँगे, बातों-बातों में ये सारी बातें हो सकती हैं। एक कामयाब शादी सिर्फ़ मोहब्बत से नहीं बल्कि एतमाद, दयानत, वाज़िया गुफ्तगू, बाहमी एहतराम और हकीकत पसंदाना तवक्कुआत से मज़बूत बनती है।